समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सोनी सर से परमिशन लेना चाहूंगी कि सर हम अपने प्रोग्राम का आरंभ करें। हाँ कीजिए, आप लोग थैंक यू सर। स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। जब तक आपने अभ्यास नहीं किया है, सिद्धांत बेकार है। अभ्यास करने के बाद सिद्धांत जाहिर है। A very good morning to everyone. I, Dr. Pooja Khurana, Associate Professor in Mathematics and moderator of today's event, extend my warm welcome to one and all present here to the workshop on Immunity Booster Yoga Package with special focus to combat COVID-19 on the occasion of 6th International Yoga Day 2020, organized by the Department of Students Welfare, Manav Rachna International Institute of Research and Studies, in association with Shivanand Yog Sansthan. A very special welcome to Dr. M.K. Soni, Pro Vice Chancellor, Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Dr. Gurjeet Kaur Chawla, Associate Dean, Students Welfare, His Holiness Param Pujya Swami Chitteshwaranand Ji Maharaj, Yogacharya Surya Prakash Ji, Yogini Kansi, Yog Master Nitin Ji, other dignitaries, head of departments, faculty members, and dear participants. Shivanand Yog Sansthan is dedicated to provide yoga enthusiasts with a diverse array of exclusive online and offline classes for yoga, meditation, and mindful living. In the harsh times like COVID-19 pandemic, members can access their online classes. They offer classes for all levels and bring together highly qualified and expert teachers who specialize in a variety of yoga styles. They believe that yoga is for everyone. The trainers, teachers, developers, and advisors helped him shaping the Sansthan into a leading online yoga resource and streaming video services. Together, they cultivate a strong community with a vision to create a positive, welcoming space for people to be their most authentic selves. I'm privileged to take this opportunity to introduce the renowned dignitary of Manav Rachna, Honorable Pro Vice Chancellor Dr. M.K. Soni. Dr. Soni is a man of distinct vision and an epitome of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience, and inspiration to all of us. He is playing a vital role in shaping the scholastic and co-scholastic environment of the university. He has an illustrious academic background. He has many awards to his credit. So without any further ado, I warmly invite Sir to deliver his welcome address. Thank you, Pooja. Thank you very much. Our respected Vice Chancellor, Dr. Sanjay Srivastava, who has sent the message to me. So, the guest and speaker, Param Pujya Swami Chitteshwaranand Ji Maharaj, Yogeshwar Surya Prakash, Yogini Kansi, Yog Master Nitin, the host of this event, Dr. Gurjeet, and Pooja, and all the faculty members, my dear students, who spread from the different organizations, from different institutes. I, on behalf of the Manav Rachna International Institute of Research and Study, welcome you all on this celebration of International Day, Yoga Day. On the eve of this Yoga Day, a yoga workshop has been organized by the Department of Students Welfare, Manav Rachna International Institute of Research and Study, from 20th June to 21st June, in association with Shivananda Yoga Sansthan. It is the 6th International Yoga Day, which is specially focused to combat COVID-19. Yoga is a divine habit, actually, if you follow religiously. And yoga is a natural progression for the health. Yoga keeps the balance among the soul, body, and mind. It boosts overall quality of life. Apart from keeping diseases at bay, yoga promotes body flexibility and balance. It also improves breathing, which keeps our lungs and heart healthy. Since yoga it places a very important role in the mind, so it encourages healthy eating habits. Yoga helps
manages stress, anxiety, and keeps you relaxing. Recognizing the importance of yoga in helping people deal with increased depression and anxiety due to disruption caused by COVID-19 pandemic, India's permanent mission to the UN has developed a special yoga module of exercises, breathing, and meditation practices to mark this year's International Yoga Day. This module has been released on the 19th June, that is yesterday. It is completely safe for all the age groups and can be practiced from the home. Yoga can also play a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation way. I wish all the best for the success of this workshop. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your blessings. Now I take this opportunity to introduce our Yogacharya, Surya Prakash ji. Surya Prakash ji is a nationally acclaimed yoga trainer and musician, known for his in-depth understanding of yoga anatomy, alignment, and philosophy. Surya Prakash's teaching is informed by years of study in multiple yoga styles. He has done masters in yoga sciences from Patanjali University, along with a diploma in Hindustani music. We have another Yogini Kansi with us. Kansi, a yogini from Rishikesh, is one of the wellness world's foremost teachers and philosophers. She is a leading teacher associated with Shivanand School of Yoga. She has been teaching yoga since last 7 years and has been an avid lifelong learner in numerous movement practices. We have another yoga master, Nitin, with us. Yoga master Nitin started his journey of yoga in his early days of schooling. He has very good command over the techniques of body movement, and he teaches well how to move from basic yoga practices to the advanced level. So without any further ado, I invite all the yoga teachers, trainers on this platform and start this workshop. Thank you so much. I request Yogini Kansi, Yogacharya Surya Prakash, and Yog Master Nitin to please own the platform. Thank you so much, Manav Rachna, for this opportunity. जैसा कि सबने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सेशन कोविड पर बेस्ड है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. I immediately jump to the practice. Before that, I will tell you, see, every country has a defense mechanism, right? हर मिनिस्ट्री अलग अलग काम करती है. The same way that डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस देखती है हमारी कंट्री का, वैसे ही हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. So for that we have to practice योग, प्राणायाम and have a good diet, right? Physical workout is important. तो अभी जितना भी प्रैक्टिस हमने प्लान किया है, ये सब आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बेटर करेगा, और साथ ही साथ जो घर बैठ के लॉकडाउन में आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट है, एंजाइटी से परेशान है, उससे भी आपको दूर करेगा. ये पूरा जो प्लान है उसको आप बहुत केयरफुली देखें, सुने और समझें, और जैसा आपको गाइड किया जाए उसे एक बार अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आसन करें. लेट मी गाइड यू सम पीपल, लाइक अगर कोई जिनकी एज ज्यादा है, नी में प्रॉब्लम है, तो वो कोई भी आसन में फोर्स ना करे, आराम से लें, जितना हो उतना ही करें अपनी क्षमता के अनुसार. किसी को बहुत ज्यादा स्पाइन में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, तो जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आगे झुकने वाले आसन करते हैं, तो आप कोशिश करें ज्यादा ना जाए, उतना ही जाए जहां तक स्पाइन सीधी है. ठीक है. जिनको हाई बीपी है वो भी थोड़ा ध्यान रखें, बहुत जल्दी ना करें, स्लो करें और बीच में ब्रेक लेते रहें, बिकॉज हाई बीपी का प्रॉब्लम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ेगा, तो बीच में ब्रेक लेते रहें. ठीक है. जिनको भी हार्निया है वो भी ध्यान रखें, आसन में बहुत ज्यादा फोर्स ना करें. वैसे ये आसन सबके करने लायक है, कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, बट स्टिल जिनसे कंफर्टेबल हो वो करें, जो ना कर पाए वो उसको हल्का लेके करें. ब्रीद इन आउट के साथ अच्छे से करें. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ब्रीद इज इम्पोर्टेंट. जहां आपको इनहेल करने बोला जाए वहां करें, जहां एक्सहेल करने कहा जाए वहां करें. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट विल सिट टुगेदर. पहले आप एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, किसी भी अवस्था में, सुखासन में यानी आलती पालती मार के,
एक पैर ऊपर उठा के बैठ सकते हैं, या जो लोग कंफर्टेबल हैं बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठें। जो लोग बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते वो इजी रहे। स्थिर सुखम आसन, अगर आप स्थिर हैं, आराम से बैठे हैं, तभी योग किया जा सकता है। तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट कांति जी। अगर किसी को कुछ सवाल जवाब पूछना है तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ आप लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ जाएं। पहले तो अपनी कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखें। हमारी सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स हमारी स्पाइन से नेक के थ्रू नीचे की तरफ जाती हैं, तो उनका स्ट्रेट रहना अति आवश्यक है। और आप अपने हाथों को बहुत ही आराम की अवस्था में ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके आप ऐसे रख लें। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप खुला हाथ छोड़ दें। आप अपने आप को चेक कर लें। अब आराम से अपनी आंखों को बंद कर लें और पहले आप डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। पहले अपनी बॉडी को और मन को आगे आने के आसनों के लिए तैयार करेंगे। तो आप लंबी गहरी श्वास लें 2 से 3 मिनट, 2 से 3 सेकेंड में, सॉरी, पूरा लंग्स में भरे, देन स्लोली एक्सहेल। वापस से इनहेल करें और फिर धीरे से मध्यम गति से एक्सहेल कर दें। फिर इनहेल करें, कोशिश करें 2 से 3 सेकंड में आप पूरा इनहेल करके अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें, लंग्स को पूरा भरें। विद द एक्सहेलेशन अपने चेस्ट को रिलैक्स करें। इनहेल एंड एक्सहेल। डीप ब्रीथ करें, आंखों को मत आराम से बंद रखें। चलिए एक बार और करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ अपने आप को बोले, मन में बोले, ये आने वाला अभ्यास आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा। The coming practices will help you to be healthy in terms of mental and the body and the physical terms. Now inhale and exhale. अब हम 3 ओमकार चैंट करेंगे, उसके बाद 3 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। Inhale together. Inhalation. फिर से लंबी गहरी सांस लें। आंखों को बंद ही रखें। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आता है तो करिए, नहीं आता तो आप ध्यान से सुनिए। इनके सुनने मात्र से ही आपका मन शांत हो जाएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब एक मध्यम मुस्कान के साथ अपने हाथों को जोड़े, नमस्कार करें और फिर हथेलियों को बहुत तेजी से रगड़ें। इतना रगड़े कि वो गर्म हो जाए। जब आपको गर्मी लगे तो अपने हाथों को आंखों पर रख दें, पाम्स को ऑन आईज, स्लोली रब योर फेस एंड देन हाथों को देखते हुए आंखों को खोलें। अब हम अगले अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे आसनों के लिए।
तो उसके लिए मैं ये सेशन हैंड ओवर करूंगी योग मास्टर नितिन जी को। नितिन, जस्ट कैरी ऑन। ओम जी, सभी को प्रणाम, सादर नमन। आज हम अभ्यास करेंगे और वार्म अप एक्सरसाइज होगी। स्टार्टिंग में वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे हम, और उसके लिए हमें ऊपर से नीचे तक ही एक्सरसाइज करेंगे सारी की सारी। पहले हम अपने नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक को थोड़ा बाएं तरफ ले जाएंगे और झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे। Then come in middle, and while exhaling, bend left side. Again, inhale and exhale down. Inhale up, exhale down. Down, relax. अब पीछे देखेंगे, पीछे देखने का जितना भी प्रयास करेंगे, अपनी गर्दन को कंप्लीट स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए मिडल में आएंगे और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। अनदर साइड। नाउ कम इन मिडल, स्ट्रेच योर कंप्लीट नेक। कम। नाउ रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। पहले हम विधि को देखेंगे, फिर उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। पहले विधि को देखना कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ही कंप्लीट करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे। कंप्लीट पूरा का पूरा गोल रोटेशन हो जाएगा। क्या है कि हम काम करते हैं, उससे हमारी गर्दन जकड़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है नेक रोटेशन, नेक मूवमेंट। नाउ रिलैक्स एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, now relax. Another exercise is our shoulders move 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise direction में मूव करेंगे, जिससे हमारा जितने भी मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे जितने भी वेन्स हैं, वो सब के सब कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction कंप्लीट मूवमेंट होगा, हाथों का कोनियां सीधी रहेंगी। Yes. Now relax. Now कटी चक्रासन। Yes. 1, 2। इससे क्या है कि हमारी स्पाइन कंप्लीट स्ट्रेच होती है। करके देखिए और फिर बताइए। पीछे की साइड ही मूवमेंट करना है, पीछे की साइड देखना है। अगर हम ये अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले टाइम में, और हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पूछिए मत। नाउ रिलैक्स। 2 से 3 फीट का गैप कर लीजिए पैरों में, एंड देन रोटेट योर वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे मस्कुलर जितना भी जो भी है, उनको सब सारे के सारे जॉइंट्स खुलने चाहिए सबसे पहले, और जॉइंट्स खुलेंगे तभी हम अपनी बॉडी को वार्म अप और पूरी तरीके से सारा का सारी बॉडी अभ्यास में लेके आते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट बोन्स में इफेक्ट डलता है, मसल्स में इफेक्ट डलता है। नाउ रिलैक्स, चेंज टाइम अपने पास, रोटेट योर एंकल। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए कम एक्सरसाइज हो रही है, और सारी एक्सरसाइज हो भी नहीं सकती इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो हम जितना करें उतना बेस्ट करें, उसको देखते हुए करें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। इससे क्या है कि हमारे घुटनों में कभी भी पेन नहीं होगा अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम। नाउ रिलैक्स। अब थोड़ा सा वार्म अप के लिए हम अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे और थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, हल्की हल्की लाइट जॉगिंग करेंगे। योग अपनाइए अपने जीवन में। अगर डेली योग करोगे तो आप कभी भी जीवन में अस्वस्थ नहीं रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें योग की अति आवश्यकता है। हम जीवन में
योग को अपनाएं। कंप्लीट हैंड्स मूवमेंट्स कंप्लीट होगा, लेग्स कंप्लीट पीछे की साइड जाएंगे। नाउ शोल्डर्स, शोल्डर इससे क्या है कि स्ट्रेच हो जाते हैं हमारे, कंप्लीट स्ट्रेच शोल्डर हो जाते हैं। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना करें, लेकिन सही विधि के द्वारा सही तरीके से करिए। नाउ रिलैक्स। नाउ उत्कट आसन करेंगे, हाथ अपने दोनों हाथ आगे। अब कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और थोड़ा सा बेंड करेंगे। यस, 1 2 3 4 and 5. Relax. Now change. अपने हाथ शोल्डर एंड देन 1 पीछे की साइड। विधि पूर्वक करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें। 2 3 4 and 5. Relax. Now change. Open your legs. साइडवेज। अपने हमारे जितने भी जो भी मोटे आदमी है उसके साइड में जो भी है फैट है वो सारा ना सारा डिक्रीज सब खत्म हो जाता है अगर ये त्रिकोण आसन करते हैं तो हम ये देखिए पहले विधि कैसे कर रहे हैं। ये हाथ हमारा इस साइड जाएगा पूरा का पूरा और गर्दन स्ट्रेट रहेगी और ये हाथ मोड़ना नहीं है, ये हाथ स्ट्रेट रहेगा। देन रिलैक्स, देन चेंज। यस, रिलैक्स, then change. Relax, then change. Relax. Now, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन हम करेंगे, एक हाथ यहां पकड़ेंगे और सेकंड हैंड ऊपर, ऊपर की साइड देखना है हमें। 1 2 3। इससे क्या है कि हमारी कंप्लीट रिस्ट रोटेशन हो जाती है, जिससे कि हमें कभी भी कमर में दर्द नहीं होता। 5 6 7 8 9 10. Relax. Now how do you feel right now? Good and best. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक स्माइल रखिए फेस पे। एक्सरसाइज करते हुए स्माइल रखिए। एवरीवन स्माइल रखनी चाहिए आपको, और हर एक जब योगा करते हैं तो हमें अपने फेस पे स्माइल रखनी ही रखनी होती है, तभी हम अपने अंदर से खुश होकर योगा करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पैर खोल लिए, ये पैर वर्टिकल एंड दिस वन हॉरिजॉन्टल। लेग्स को कंप्लीट थाइज की एक्सरसाइज है। नाउ डाउन। यस यस यस। while exhaling down. 1 2 3. Relax and then change. 1 2 3. Relax. Now हस्त उत्थान एंड पाद हस्तासन। इससे क्या है कि हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ्स मसल्स कंप्लीट खिंच जाएंगे। ये देखिए हस्त उत्थान में कैसे जाएंगे, पीछे सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, डाउन। जितना आपसे झुका जाए उतना झुकिए, लेकिन विधि पूर्वक करिए, उससे आपको लाभ इतना होगा, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। डाउन। यस, 1 2। नाउ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now last time. Inhale and down. Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. देखिए हमने आज एक्सरसाइज की है, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाए, और आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में योग अपनाएं और फिट रहें। जीवन में यही आज का उद्देश्य है कि अपने जीवन में फिट रहना चाहिए हर एक इंसान को। और अब मैं एक लास्ट संदेश से अपना
मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। नहीं होती है उनको बीमारी, नहीं होती है उनको बीमारी, जो योग करने की रखते हैं समझदारी। धन्यवाद। अब मैं यांशी जी को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिन फॉर दिस वार्म अप। और मैं एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि आपने अच्छा खासा होगा और आपको अच्छा फील हो रहा होगा, राइट? तो चलिए हम आगे के आसनों के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं और पहले हम कुछ देर का रिलैक्सेशन करेंगे, उसके बाद फर्दर हम आसन करेंगे। वार्म अप करना हमेशा किसी भी आसन से पहले जरूरी है। आप नॉर्मल भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। चलिए हम आगे पहला आसन करेंगे। ये आसन आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करके, स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेट करता है और आपका पोस्चर तो करेक्ट करता ही करता है। और आई टोल्ड यू एज आवर इंपॉर्टेंट नर्व्स आर कनेक्टेड विद आवर स्पाइन, तो जब आपकी इंपॉर्टेंट नर्व्स स्पाइन खींचती है तो उनकी मसाज होती है और ब्लड फ्लो, एयर फ्लो उनमें अच्छे से होता है। तो उसके बाद आपके आने वाले जितने भी रोग हैं वो दूर ही रहते हैं और इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम भी फिक्स हो जाता है। आप खड़े हो जाएं, पैरों में शोल्डर इतना गैप रखें। पहले हम 3 ब्रीथ रिलैक्स करेंगे। हाथों को पीछे से बांध लें, स्ट्रेट खड़े रहें, आईज को बंद करें, आंखों को बंद करें और लंबी गहरी सांस लें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक बार और लंबी गहरी सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब हाथों को साइड फेस ले आए। पहले अपने पोस्चर को करेक्ट करें, सीधे खड़े हो और अपने फिंगर्स को लॉक करके अपने सर के ऊपर रखें। फिंगर्स को ऐसे लॉक करें और सर के ऊपर रखें। अब इनहलेशन के साथ आप ध्यान रखें, ब्रीथ कम करना है और कम छोड़ना है। विद द इनहलेशन अपने आर्म को पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और धीरे धीरे टोज पर आए। कम टू ऑन योर टोज और ऊपर ब्रीथ करते रहे। यहाँ पर अपनी सांसों को नहीं रोके। मैं मानती हूँ यहाँ सांस रोकना इजी है और आपको होल्डिंग होता है। अगर आपने होल्डिंग करना है तो एक जगह गेज करें, एक जगह देखें। होल्ड इट फॉर 10 काउंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल, एक्सेल करते हुए अपने हाथों को फिर से सर पे रखें बिकॉज हमें नेक्स्ट रिपीट करना है। फिर से चेक करें पोस्चर, पैरों में गैप देख लें, शोल्डर स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। विद द इनहलेशन अपने हाथों को ऊपर पूरा स्ट्रेच करें और धीरे से टोस पर आ जाएं। बी कंफर्टेबल, जितना जाए उतना ठीक है। हाथों को पूरा स्ट्रेच करें, कानों से हाथ लगे हुए हो और एक पॉइंट पे देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With the exhalation, come down and slowly relax your hands. Now breathe in and out, breathe in and out. हर एक आसन के बाद 1 से 2 सांस से लेकर हमें अगला आसन करना चाहिए। ओके, अगला आसन है हमारा बैक बेंडिंग का। Why we are doing back bending? Because back bending से अगेन हमारी स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है और आपको प्रेशर फील होगा आपके लोअर एब्डोमेन में। चेस्ट वाइड ओपन हो जाएंगे, बैक में प्रेशर आएगा एंड यू विल फील योर लेग्स। ठीक है, तो आपके सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जाता है। विद द इनहेलेशन देयर आर 2 ऑप्शंस, आप एक बार देख लें। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और वापस से धीरे से बेंड करें। जो लोग ये कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो जो और इजी करना चाहे, कंफर्टेबल होना चाहे, वो अपने हाथ को ऐसे रखें, 4 फिंगर्स ऑन योर वेस्ट। थंब को आप पीछे स्पाइन पे लगा लें, स्पाइन के दोनों तरफ। इनहेल के साथ बेंड करें और वहां पर सांस को रोकना नहीं है। इनहेल करें एंड बेंड बैकवर्ड। ओके, विद द इनहेलेशन और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाए, ब्रीथ इन आउट करें, फिर डू नेक्स्ट आसन। एक बार लंबा गहरा श्वास ले लें। अब हम करेंगे पादहस्तासन।
इसके लिए मैं पहले ही गाइड करूं, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक पेन है, वो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट ही रखना, ठीक है। इससे आगे ना मूव करें, आप हाथों को यहाँ और यहाँ रख सकते हैं। जो नॉर्मल है, फिट है, they can do. With the inhalation, raise your hands up, stretch up, stretch up. With the exhalation, bend forward. Exhale करते हुए जाए, धीरे धीरे धीरे। अगर आपको ब्रीथलेस फील होता है तो रुक जाए और फिर से सांस लें और फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाए जाए जाए। अगर आप अपना मैट छू सकते हैं तो छू लें, अदरवाइज जहां पर है वहां होल्ड करें and hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस लीजिए और फिर ऊपर आइए। Inhale and relax. I keep saying अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखें, कहीं भी सांस नहीं रोके, नहीं तो चक्कर आएगा या ब्लैक आउट हो जाएगा। मैं अगेन वार्न कर रही हूँ, be careful about your breath. Now we'll do next Utkat Asan. Somehow Nitin told you how to do it. Now we have to hold in this asan. Please understand how to do it, then we'll do it. Okay? I'm showing you how to do and how to breathe in and out. पहले अपने पैरों में हमेशा शोल्डर इतना गैप रखना है। स्ट्रेट खड़े हो, हाथों को इनहेलेशन के साथ ऊपर ले जाए और एक्सहेल करते हुए अपनी टेल बोन को पीछे की तरफ ले जाएं। टेल बोन को पीछे ले जाएंगे, पीछे, और अपने नीज और टोज को एक लाइन में रखना है, आपने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट योर पोस्चर्स। आपने यहाँ होल्ड करना है और टेल बोन को पीछे ले जाना है, ठीक है। ओके, और एक्सहेल करके विल कम बैक। नाउ विल डू इट टुगेदर। ओके, टेक इट इजी। इनहेल, slowly exhale, tailbone को पीछे ले जाएं, tailbone को पीछे ले जाएं। वेरी नाइस। जहां तक होल्ड करते हैं करें और आप होल्ड करें, फॉर्म रहे। यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा नीचे जाएं, ट्राई, धीरे 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 नीचे जाएं और बैठ जाएं। और बैठ के आप इस पोस्चर में बैठने का प्रयास करें, ट्राई करें आप। अगर बैठ सकते हैं ठीक है, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं। ब्रीद इन एंड आउट करें। बल आसन, आंखें बंद कर ले। जो नहीं बैठ सकते वो आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो बैठ सकते हैं प्लीज ट्राई। आफ्टर ऑल आप यहाँ अपने हेल्थ के लिए आए हैं, तो डू इट विद डेडिकेशन। ओके, नाउ एक्सहेल एंड सिट डाउन। ओके, एक बार फिर से आराम की अवस्था में बैठे, लंबी गहरी सांस लें, आंखों को बंद कर ले, मुंह को भी बंद कर ले। इनहेलेशन आपने नोज से करना है और एक्सहेल करना है। सी ब्रीथ क्या करता है, आपको इमीडिएट स्ट्रेस से निकाल देता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे आपने मेहनत की हो। तो अभी आप मेहनत करके आए हैं, तो इस तनाव को दूर करने के लिए आप लंबी गहरी सांस लें। ब्रीद इन एंड आउट। ओके, ब्रीद इन एंड आउट। व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस, बैठ जाएं और लंबी गहरी सांसें लें, ठीक है। चलिए, अगला अभ्यास है हमारा मंडूकासन। जिनको घुटने में दिक्कत है, इफ एनीवन हैज नी प्रॉब्लम, वो इस तरह से, ठीक है। जो ठीक है, नॉर्मल है, वो इस तरह से अपने पैरों को बेंड करें और इस तरह से अपने पैरों पर बैठ जाएं। कोशिश करें जो काफ मसल है, ये मसल को बाहर निकालें। यस, इस मसल को निकालें बाहर और फिर बैठे। इससे आप ज्यादा कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है वो टेक इट इजी, आलती पालती मारकर करें। तो लेट मी टेल यू हाउ टू डू मंडूकासन। आपने क्या करना है, अपनी मुट्ठी बनानी है, थंब को अंदर लेना है ऐसे, और 4 उंगलियों को उस पे ऐसे प्रेस करके लगा देना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, नाभि के चारों तरफ, देयर इज अ नेवल पॉइंट, यू नो, उसके लेफ्ट और राइट अपने हैंड को प्लेस करना है, ठीक है। अब पहले अंडरस्टैंड करें कब ब्रीथ इन एंड आउट करना है। योर मूवमेंट शुड बी लिंक्ड विद योर ब्रीथ इन एंड आउट। ओके, लेट मी शो यू फर्स्ट, देन विल डू इट। ऐसे रखा है, हम इनहेल करेंगे, पूरा एक्सहेल करेंगे और अपने स्टमक को इन करेंगे ऐसे,
उसके बाद हाथ रखेंगे, प्रेशर देंगे और ब्रीथ होल्ड के साथ ही हम आगे झुकेंगे और ब्रीथ को होल्ड रखेंगे। जिनको हाई बीपी है वो सांसों को ना रोके, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो भी सांसों को ना रोके, जिनको अस्थमा है वो भी ना रोके। और फिर जब आपको सांस लेनी है तो आप ऊपर आएंगे, तो यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ। जिनको मना किया है वो ना रोके प्लीज, ठीक है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल कीजिए, पहले फिस्ट बनाइए, इनहेल, पूरा एक्सहेल कीजिए, सक योर स्टमक, हाथ लगा दीजिए and bend forward slowly. Yes, hold there for some time. Check your breath. जब तक आपकी ब्रीथ अलाउ करे तब तक अपने आप को होल्ड करके रखें। अगेन जो अस्थमा है, हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट्स है, हार्निया है, प्लीज टेक केयर। ब्रीद इन करें, आउट करें, वापस आ जाएं। ओके, एक्सहेल, ठीक है। एक बार ब्रीद इन आउट करें इसी पोस्चर में। अब यहीं से आपने क्या करना है, ब्रीद इन आउट कर लें एक बार, धीरे से अपने मैट पर स्लोली लेट जाएं। मैट पर पूरा लेट जाएं। हम करेंगे भुजंग आसन। एक मैं आपको थोड़ा इजी वर्जन बताऊंगी, एक थोड़ा सा लेवल अप बताऊंगी, बिकॉज वी हैव अ वेरी वास्ट ऑडियंस, ठीक है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप ट्राई करिएगा और होल्ड कर दिएगा। लॉक योर फिंगर्स लाइक दिस एंड स्लोली प्लेस ऑन द मैट। पीछे अपने लेग्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट करके जमा कर रखें। टोज शुड बी बैकवर्ड फेसिंग, आपके टोज बैकवर्ड फेसिंग रहेंगे। लॉक कीजिए, फॉरहेड रखिए। जब आप रेडी हैं तो इनहेलेशन के साथ स्लोली लिफ्ट योर अपर पार्ट। विद द इनहेलेशन लिफ्ट अप एंड होल्ड। अपने चेस्ट को बाहर निकाल के रखें, नेक को सामने रखें या हल्का सा बेंड करें। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6। डू इट, आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, करिए। 7 8 9 10। विद द एक्सहेलेशन डाउन आ जाए, ध्यान रखें एक्सहेलेशन के साथ आना है। नाउ द अदर वेरिएशन, अपने हाथ को पाम वाइडली ओपन करें, फिंगर्स को, देन प्लेस नियर योर शोल्डर। अपने एल्बोज को बाहर ना निकालें, उसे चिपका दे बॉडी से। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपकी एल्बोज शुड बी विद द बॉडी, ठीक है। माथे को रखें, पीछे पैर ज्वाइन रहेंगे, टोज पॉइंटेड बैकवर्ड। नाउ विद द इनहेलेशन लिफ्ट योर बॉडी अप। कोशिश करें एल्बो ना बाहर जाए और यहाँ तक ही होल्ड करें, ऐसे नहीं उठाना है शोल्डर। रिलैक्स योर शोल्डर, चाहे आप नीचे करें कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. You can see how many places you are feeling the pressure. It's obvious. आप माथा रख लें और इनहेल एक्सहेल करें। आपको दिख रहा होगा कहाँ का आपने प्रेशर फील किया है, तो इट्स ऑब्वियस कि उन पार्ट्स पे आपके काम हो रहा है। ओके, ब्रीद इन आउट करें, रिलैक्स करें, ऑलवेज स्टे। एक आसन के बाद दूसरे में रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप विन्यासक के साथ, फ्लो के साथ कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। विल डू नेक्स्ट आसन, विल डू सलब आसन। आप अपने हाथों को थोड़ा सा टर्न करके हाथों को फैला के अपनी थाइस पे रखिए, दोनों हाथ थाई के पास, और फिर उनको लॉक कर दीजिए। आपके हाथों की पोजीशन यही होगी और वापस से पेट के बल लेट जाइए। हाथों को वहीं रखें, स्ट्रेट रखें, चिन को फ्लोर पर लगा दें। यस, चिन आपका मैट पर रहेगा। अब आपने क्या करना है, इनहेल के साथ राइट लेग उठाना है। ओके, अब इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, राइट लेग को पूरा पीछे से उठा दीजिए एंड प्लीज घुटने को ना मोड़ें, स्ट्रेट खींच कर रखें। यस, होल्ड करें। 1 2 3 4। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बीच में ना रोकें। 7 8 9 and 10. Slowly exhale and come back. Now with the left leg. इनहेल करते हुए पूरा पैर उठाएं। यस, होल्ड करके रखें लेफ्ट को, नीज को बेंड ना करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करके हाथों को रिलीज करके आगे ले आए और मकर आसन में रेस्ट करें। मकर आसन, हाथों के ऊपर हाथ रख दें ऐसे और लेग्स को थोड़ा वाइड ओपन करें। ओके, और फॉरहेड रख के रिलैक्स करें। दिस इज अ रिलैक्सेशन आसन। ब्रीद इन आउट करें उसी पोस्चर में। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अबाउट द प्रैक्टिस। जनरली भी जब भी हमें रिलैक्स करना हो तो मकर आसन इज वेरी बेनिफिशियल। इट रिलीजेस योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ओके, ब्रीद इन एंड आउट करें और धीरे से आप करवट ले लें। राइट साइड को टर्न हो पहले। राइट साइड टर्न होने के बाद लेफ्ट हैंड को मैट पर रखें और लेफ्ट हैंड की सपोर्ट से उठकर बैठे। सी देयर इज अ मोशन टू कम एंड आउट। आप जब लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेड से उठे तो ऐसे ही उठे। इट रियली वर्क्स बिकॉज आपकी बॉडी जब आप सोकर उठते हैं तो उसको बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, तो यू नीड सम सपोर्ट। ठीक है, तो देयर इज अ मोशन टू कम बैक एंड go to the asana or something. Okay, sorry about the fumble. Now we'll do हल आसन। See again, जिनसे हो वो कीजिएगा, जिनसे ना हो उनके लिए भी वेरिएशन है। ओके, तो हल आसन के लिए क्या करना है, आपने अपने लेग्स को पूरा स्ट्रेट करना है आगे की तरफ और फिर लेट जाना है। नाउ लाई डाउन ऑन योर मैट। पहले देख ले डेमोन्स्ट्रेशन को, फिर करें। जब आपको समझ आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, जॉइन योर लेग्स, हैंड्स ऑन मैट विद द इनहेलेशन। पहले लेग्स को 90 डिग्री पे स्ट्रेट करें। जिनसे हल आसन ना हो वो यहाँ होल्ड करें। जो कर सकते हैं अगेन इनहेल और टोज को नीचे फ्लोर पर लगा दें और हाथों को मैट पर रखें। हल आसन होल्ड करें। 1, कोशिश करें चिन लगे आपकी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ सपोर्ट योर वेस्ट। अपने वेस्ट को पकड़े, सपोर्ट दे हाथ से और स्लोली रेज योर लेग्स अप एंड कम टू सर्वांगासन लाइक दिस। सी, जो लोग कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते आई सजेस्ट यू टू डू दिस उत्थान पादासन एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly come back. ओके, आप लेटे रहें। अगला आसन भी लेट कर ही है। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो हम करेंगे कंधार आसन। आप जिस पोस्चर में लेटे हैं उसमें ही लेटे रहिए। अपने लेग्स को वाइड ओपन कर दीजिए। यस, कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ को मैट पर रखना है और इनहेलेशन के साथ अपने पेल्विक को ऊपर उठाना है। इनहेल, रेज योर पेल्विक अप। ओके, इनहेल करें और धीरे से पेल्विक को पूरा उठाए। कंधार आसन, ये लिफ्ट करें पूरा। जिनसे हो रहा है ठीक है, जो नहीं कर पा रहे वो सपोर्ट दें ऐसे। यस, कंधार आसन होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेलेशन के साथ कम डाउन। विल ट्राई इट वन मोर टाइम। आपको कोशिश करना है वेट को शिफ्ट करके, पुश करके अपने शोल्डर पे लेने का, कंधों पर। ठीक है, चेक योर पोस्चर। आपके नी और एंकल शुड बी वन लाइन। लेग्स में 1 to 1.5 फीट का गैप हो। हैंड्स ऑन मैट विद द इनहेलेशन। रेज योर बॉडी अप, मोर अप। पेल्विक को पूरा उठा ले। शोल्डर को पे वेट लेकर आए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेलेशन के साथ कम डाउन और रिलैक्स करें। हाथ पैरों को फैला दें, हाथों को ढीला छोड़े और ब्रीद इन आउट करें। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, कीप ब्रीथिंग। आंखें बंद करके रिलैक्स करें। कंधार आसन किया है आपने अभी। इनहेल और एक्सहेल करें।
Inhale and exhale. Yes. अब here onwards अगर मैं आपको दिख रही हूँ तो आप एक बार मेरी तरफ देखें. अपने नीज को आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे. आप फिंगर लॉक करके भी पकड़ सकते हैं और इसको प्रेशर देके अपने एब्डोमेन मसल्स पे प्रेशर देकर लाएं. यस. अगर आप रेडी हैं, इनहेल करें, सांस लें. सांस छोड़ते हुए अपने नोज को अपने घुटनों पर लगा दें और या होल्ड करें और ब्रीद इन एंड आउट करते रहें. कुछ लोग होल्ड करके भी करते हैं बट वो प्रैक्टिशनर की ज्यादा प्रैक्टिस होती है. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. With the exhalation, just relax your body. पैरों को फैला दें. एक बार लंबी गहरी सांस लें. Now we'll do मरकट आसन. It's a very simple आसन. Very good for your spine, back pain, immunity system तो हम बूस्ट कर ही रहे हैं. उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. एंड अगर आई ऑलवेज से अगर ये आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आप हमेशा यंग हैं. आपका एनर्जी स्टैमिना बना रहेगा. यू विल बी अवे फ्रॉम डिजीजेस. ओके. मरकट आसन के लिए फिर से अपने पैरों को ऐसे बेंड करके रख लें. यस. एंकल और नीज एक लाइन में रहने हैं आपके. हाथों को वाइड ओपन करें. ठीक है. और इस बार मैं दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल है, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. आप इनहेलेशन के साथ अपने लेग्स को वही रखते हुए लाके राइट साइड को गिराएंगे. नाउ माय लेग्स आर गोइंग टू राइट साइड. दे आर गोइंग डाउन डाउन डाउन. माय राइट फीट इज ऑन द मैट एंड माय left knee is on the right ankle. Okay. आप कोशिश करें लेफ्ट नी को राइट एंकल पे प्लेस करने का और नेक को अपोजिट साइड ले जाए. दिस इज माय राइट साइड. आई एम टेकिंग माय नेक टुवर्ड्स लेफ्ट वन. ओके. अब यहाँ पे आप एक स्ट्रेच फील करेंगे लोअर स्पाइन में, योर साइड में, और होल्ड करें. With the inhalation, come back to the center. Inhale करके center में आए. With the exhalation, अपने legs को left side गिरा दे. Yes, slowly go down, down. और neck को ले आए right side. They should be opposite to each other. Now check. आपका right knee left ankle पे गया है क्या? Your right knee should be on left ankle. जिनको नी का प्रॉब्लम है या जिनको फैट बहुत ज्यादा है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट यू ट्राई. नाउ इनहेल एंड विद द एक्सहेलेशन कम बैक टू द अदर साइड. यस. होल्ड इट फॉर सम टाइम. ब्रीथ इन एंड आउट करते रहे. अल्टीमेटली ये आपको स्ट्रेंथ देगा, एनर्जी देगा, निरोग देगा. तो आप इसे अच्छे मन से करें. टर्न योर साइड. इनहेल एंड एक्सहेल. टर्न योर साइड. यस. विद द इनहेलेशन कम बैक. पैरों को फैला दे और रिलैक्स करें. इनहेल और एक्सहेल करें. पूरा लेटे रहे, रिलैक्स करें. ब्रीथ इन आउट के साथ रिलैक्स करें. ब्रीथ इन एंड आउट. अब फिर से जैसा कि मैंने बताया था, आप पहले राइट साइड करवट लीजिए. ओके. फिर लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से उठकर बैठिए. ट्राई टू प्रैक्टिस दिस ऑलवेज. राइट साइड जाए और उठकर कंफर्टेबली बैठ जाए. ओके. एक लास्ट आसन है हमारा, उसके बाद हम प्राणायाम के सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे. So this is the last one. या ये बहुत कम है बट ये जितने भी हैं अगर आप इतने भी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे. एक सूर्य नमस्कार जरूर ऐड कर ले. आप उसे YouTube से देख सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट करके आगे सीख सकते हैं. तो सूर्य नमस्कार अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर ले जरूर, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम तो वी कांट इन्वॉल्व एवरीथिंग इन दिस पैकेज. ओके. चलिए पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें. बिल्कुल स्ट्रेच रखें. अपने टोज को टक इन करें अंदर की तरफ. स्पाइन सीधा करें. इनहेलेशन के साथ हाथों को पूरा लिफ्ट करें.
एक्सलेशन के साथ धीरे धीरे आपके हाथ कान पे लगे रहें. बेंड फॉरवर्ड. यस, बेंड फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन एंड होल्ड योर फीट. जिनसे नहीं हो रहा, आई अंडरस्टैंड, आप स्पाइन को सीधा रखते हुए यहाँ होल्ड करें या यहाँ होल्ड करें. ठीक है, जिनसे हो रहा है प्लीज गो बेंड फॉरवर्ड. ये आपकी जठराग्नि को तेज कर देता है. जठराग्नि मीन्स आपका डाइजेशन, उसको बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है. आपकी वेस्ट लाइन से चर्बी हटा देता है, फैट हटा देता है. स्पाइन से की तरफ पीछे है, आपके स्टमक से हटा देता है. होल्ड. 5 6 7 8 9 10. वर्क द इनहेलेशन. ऐसे ही जैसे गए थे वापस आए और एक्सहेल करें. ओके, पैरों को वापस लाए और कंफर्टेबल होकर बैठ जाए. The asana part is finished for this time, but you keep practicing. Let me tell you, अगर आप थोड़ा भी चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, the current scenario is not so good, but we have to be remain positive, healthy, fit, energetic. So we have to practice yoga. Okay. Now I'll hand over the session to Yogacharya Surya Prakash. Please, Surya, take over the session. Thank you so much. Om, am I audible? Somebody say yes. Yes, sir. Okay, thank you. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में. I would like to thank Manav Rachna University for giving us this great opportunity. And yes, अब हम प्राणायाम करेंगे. प्राणायाम के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए. आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे. बस शर्त यह है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए. तो आप इसके लिए पद्मासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, प्राणायाम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम प्रणव, ईश्वर के नाम को लेंगे और इसी को उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं. तो डीप इनहेल और ओम का उच्चारण करना है. चलिए, लंबा गहरा श्वास भरिए. शांत. मुझे ज्यादातर लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं सबके चेहरे पर प्रसन्नता है कि नहीं. हो सकता है योग अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा शरीर थक गया हो. तो हास्य आसन मुझे लगता है हमें अभी शुरू कर देना चाहिए. मैं बोलूंगा आम और ओम आनंदम और आपने हंसना है. ठीक है जी, आनंद में रहना है. चलिए, ओम आनंदम. ओम आनंदम. ओम आनंदम. ओम आनंदम. चलिए, अपनी स्माइल को अपने चेहरे पर बना करके रखिएगा पूरे प्राणायाम के अभ्यास में. ठीक है, कमर गर्दन सीधी करें और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से. भस्त्रिका प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं. आपको डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है. ठीक है, चलिए लंबा गहरा श्वास भरिए. धीरे से छोड़ दीजिए, एक्सहेल. धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, लेकिन गहरा होना चाहिए श्वास. पूरा छाती में भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे. आप प्राणायाम करते रहिए, मैं बेनिफिट बताता हूं. लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना. भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं. वर्तमान में आप सब जानते हैं कोरोना वायरस पूरे देश में किस तरह से भयानक तरीके से फैल रहा है. दिल्ली में और देश के अलग पार्ट्स में भी, मुंबई और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, तो हमें जरूरत है सतर्क हो जाएं.
और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभकारी। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत कर देता है, मजबूती दे देता है। और आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को ही इन्फेक्ट करता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 5 से 15 मिनट या 15 मिनट से 20 मिनट तक भी आप इसे हर रोज अपने योगाभ्यास में कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना और धीरे से छोड़ना। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। यह प्राणायाम आपके मन को भी शांत कर देता है। चलिए, साधना के लिए भी यह प्राणायाम बहुत उत्तम है। अब अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सब जानते हैं इसको करने की विधि। अपने राइट हैंड को उठाएंगे, अंगूठे और तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे, तर्जनी को मोड़ लेंगे, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, बाकी सब सीधा, और अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को हल्के से बंद कर लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लेफ्ट को बंद कर दीजिए। राइट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। फिर राइट से ही श्वास ले लीजिए। इनहेल, गहरा श्वास भरने के बाद लेफ्ट से धीरे से छोड़ देंगे। एक्सहेल आउट, देन ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट nostril only and exhale from the right one. फिर राइट से ही श्वास को भरेंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट हर रोज आप करें। हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से दोनों में हार्मनी होती है, सिंक्रोनाइजेशन होती है और हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, हमारा इमोशनल क्वोशिएंट, सोशल इंटेलिजेंस बढ़ता है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आप गुस्सा कम आएगा। मन को शांत करने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ी सहजता से करें। राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करके छोड़ दें। भस्त्रिका प्राणायाम में और भी वेरिएशन है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे और लेफ्ट से ही ले लें, तो फिर राइट से छोड़ दें, राइट से ही श्वास लें, ऐसे करें। लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से ही लेना, फिर राइट से छोड़ना, राइट से ही लेना। तो इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जो विधि समझ गए हैं वो एक बार साथ देख लें। ऐसे तो भस्त्रिका प्राणायाम आप तेज गति से भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जो मैंने बताया था पहले, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ठीक है, ओके। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का वेरिएशन हुआ। नेक्स्ट अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप सब जानते भी होंगे। श्वास को वेग से बाहर छोड़ना है। हमारा कंसंट्रेशन नासिका पर होना चाहिए, श्वास को बाहर छोड़ने में होना चाहिए, ना कि पेट को पीछे अंदर की ओर खींचने में। पेट स्वतः अंदर आपका अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वेग से श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे इस प्रकार से श्वास को वेग से बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्राणायाम को आप 15 मिनट तक हर रोज कीजिए। कपालभाति प्राणायाम आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। आपके ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, लीवर सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। पूरे पेट की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। आप जानते ही हैं आपके
ज्यादातर रोग जो हमें होते हैं सबके सब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका कारण हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा रहता है। कपालभाति प्राणायाम अत्यंत लाभकारी। एक और बात मैं बता दूं, अभी रिसर्च से हमें पता चला है कि जो हमारी इम्यूनिटी है सबसे ज्यादा डिपेंड करती है हमारी गट हेल्थ पर। 80% हमारा इम्यून सिस्टम हमारे गट हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो इसमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप करें। वेग से श्वास को बाहर छोड़ें, अंदर लेने का प्रयास नहीं करना है, वो स्वतः ही अंदर आ जाएगा। हाथों को आप घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, तर्जनी और अंगूठे को मिला करके। आंखें चाहें तो कोमलता से बंद कर सकते हैं। चलिए अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बहुत चमत्कारी इसके लाभ हैं। कोरोना वायरस भी हमारे गले को इन्फेक्ट करता है, हमारे ट्रैकिया को, ब्रोंकियोल्स को, ब्रोंकाई को, एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। और उज्जाई प्राणायाम हमारे ट्रैकिया को, वोकल कॉर्ड को, इसोफेगस को, यहाँ पर सारे तंत्र को ठीक कर देता है। उज्जाई प्राणायाम करने का तरीका है कि आप गले से घर्षण करते हुए इनहेल करेंगे, गले से घर्षण करते हुए, जैसे इस प्रकार से। हो सकता है शुरू में आपको खांसी भी आए, तो दैट्स नॉर्मल, ठीक है। गले से घर्षण करते हुए डीप इनहेल करेंगे, श्वास को भरकर रोकेंगे। पूरा श्वास भर जाने पर छाती में रोक लीजिए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरते हुए, घर्षण करते हुए श्वास भरें। ब्रीद इन, मन ही मन आप ओम का भी जाप कर सकते हैं। होल्ड कीजिए ब्रेथ को यहीं पर। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे, ना रोक पाए तो। एक बार फिर से करेंगे, अंतिम बार। रोक लीजिए। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से जिन भाई बहनों को बोलने में समस्या होती है, हकलाते हैं या इस प्रकार की कोई भी समस्या है गले से संबंधित, वो ठीक हो जाती है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे से छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम थायराइड में सबसे ज्यादा लाभकारी पाया गया है, रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है। और चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसकी वजह से आपको मोटापा हो जाता है थायराइड की वजह से, या फिर दुबलापन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो माताओं बहनों में ये समस्या ज्यादा रहती है। उज्जाई प्राणायाम करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, बाह्य प्राणायाम। श्वास को वेग से बाहर छोड़ निकाल देना है, पूरे श्वास को बाहर निकाल देना है और फिर बाहर ही रोक के रखना है, होल्ड करना है और आपका पेट अंदर की ओर खिंच जाएगा, ठीक है। और बंद लगा लेना है। बंद यानी कि ऊपर से श्वास नहीं लेना है, नीचे से मूल बंद, एनएस को ऊपर की ओर सिकोड़ करके रखेंगे। चलिए श्वास को पूरा बाहर निकालिए। बाहर ही रोक कर रखें, ना रोक पाए तो धीरे से श्वास ले लें। पुनः करेंगे, श्वास को बाहर निकालें, होल्ड। जिन्हें बीपी की समस्या है वो ना करें।
छोड़ दें। 5 से 6 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें, इससे आपको मानसिक स्टेबिलिटी मिलेगी, मन शांत होगा। चलिए अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम बहुत ही गुणकारी, बहुत लाभकारी, आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग घर पे रह के स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। वैसे भी हमें एंजाइटी और स्ट्रेस किसी वजह से हो सकता है। भारत में तो बहुत कॉमन हो गया है ये, हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी से, स्ट्रेस से, और जब ये स्टेज आगे बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल अपना जो सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे बहुत अच्छे, और उन्होंने सुसाइड कर लिया, बहुत ही दुखद बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों को खोल लीजिए, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, तर्जनी को भौं के ऊपर रखेंगे, शेष तीनों उंगलियां आंखों के मध्य रहेंगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, भ्रमर की तरह। भ्रमर यानी भंवरा, भंवरा जैसे गुंजन करता है वैसे आपने गुंजन करना है। लंबा गहरा श्वास भरिए। फिर से श्वास भरिए। एक बार और। शांत बैठे। भ्रामरी प्राणायाम आपके मनोविकारों को दूर करता है, आपके चित्त में शांति स्थापित करता है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 बार हर रोज करना चाहिए। मन एकदम शांत। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण प्लस आयाम, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। प्राण यानी कि ब्रेथ, आयाम यानी कंट्रोल, तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज प्राणायाम। चलिए, तो ये इन प्राणायामों का अभ्यास आप हर रोज करें। कोरोना से बचने के लिए ये बहुत लाभकारी हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोरोना पर मैं रिसर्च भी कर रहा हूं, और रिसर्च पेपर अभी कंप्लीशन स्टेज में है। तो मैंने अपनी रिसर्च में जो पाया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कोरोना से बचने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक डाइट हमारी होनी चाहिए। हम अपने आहार में किन चीज़ों को ऐड करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके पास यदि पेन पेपर है तो आप ले लें और कंफ्यूज ना हो। इसके लिए आप गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और अदरक, इन सब का काढ़ा बना करके पी लीजिए और अपने परिवार को भी पिलाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। परमात्मा ने हमें मैकेनिज्म दिया है, हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। दुश्मन यानी पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। और ये काढ़ा उन सैनिकों के हाथ में बंदूक है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जो सैनिक हमारे भीतर हैं। तो इस काढ़े का सेवन आप अवश्य करें। इसके साथ ही दही, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को। तो दही का प्रयोग आप अवश्य करें। यदि
आपकी कफ प्रकृति है, जुकाम आदि ज्यादा रहता है, तो दही का सेवन ना करें। ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए और डी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना में सार्स नाम का एक वायरस पहले भी आया था 2003 में, और उसके बाद जो रिसर्च हुई, रिसर्च से पता चला कि विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से ये रोग बहुत ही भयावह हो गया था। और ऐसे ही कोरोना भी है, तो हम विटामिन ए और विटामिन डी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। विटामिन डी के लिए आप सुबह की धूप का सेवन करें। सुबह 8:30 बजे तक आप धूप में बैठ सकते हैं और विटामिन डी आपको नेचुरली मिलती रहेगी। विटामिन ए के लिए आप खुमानी, एप्रीकोट का सेवन करें। और आम, अभी सीजन चल रहा है आम का, 40% आम में 40% विटामिन ए होता है। इसके अलावा आप एक्वायर्ड, आपकी जो 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट जो हमारी बचपन से है, शुरू से है, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेहबेरी फल होता है और इसमें जिंक होता है, जो जिंक हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत लाभकारी है हाइपरटेंशन में, कार्डियक डिस्फंक्शन में। जिन लोगों को हृदय की समस्या है, तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनसे मिलता है उनका सेवन करें, जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। कोरोना, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको सबसे ज्यादा, दे आर वेरी ससेप्टिबल टू दिस इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हमारी रसोई में, सबकी रसोइयों में है, और इसके गुण तो अद्भुत हैं, इसके लाभ अद्भुत हैं। कैंसर में हल्दी का बहुत, अभी रिसर्च हुआ था तो उससे पता चला कि कैंसर में भी जो हल्दी का सेवन अगर प्रतिदिन शुरुआत से ही करते रहें, तो कैंसर तक भी इससे ठीक हो सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है, पेप्टाइड है, और ये एंटी माइक्रोबियल है। लेकिन इसको कंज्यूम होने के लिए फैट चाहिए, तो वो फैट आपके दूध में भरपूर मात्रा में है। आप गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल करके उसका सेवन करें, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अदरक की बात मैं करूं, अदरक में एलिसिन नामक एक पदार्थ होता है। ये एलिसिन, ये भी एंटीवायरल है। बहुत सारे लोगों को अभी बुखार भी हो जाता है, हो सकता है कोरोना से इन्फेक्ट ना हो, लेकिन बुखार हो जाता है, वायरल बुखार हो गया, तो उसमें भी अदरक का सेवन आप करें। ये एलिसिन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, और आपके ब्लड को भी पतला करता है। बहुत सारे लोगों की कोरोना से इसलिए भी मौत हो रही है, पहला तो उनको मल्टीपल डिजीज हैं, दूसरी बात कि खून गाढ़ा हो जाता है, तो खून गाढ़ा होने की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं ब्लड क्लोटिंग की समस्या आ जाती है। तो अदरक का सेवन करने से ब्लड भी पतला होता है। इसके अलावा लहसुन, 1 पोत लहसुन आप भोजन के बाद अवश्य लें। लहसुन को आप 1 पोत लहसुन की 1 पोत लीजिए, उसको 4 से 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए उसको, और 5 से 7 मिनट उसको आप ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसके बाद उसका सेवन करें, क्योंकि उसके गुण तभी निखर के आते हैं। इसके अलावा लौंग को आप अपने भोजन के बाद अवश्य खाएं। 2 लौंग आप तीनों समय भोजन के बाद खा सकते हैं। लौंग का ओरेक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ओरेक वैल्यू क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे डिजीज हमें हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए सबसे लाभकारी लौंग। तो लौंग का आप प्रयोग कीजिएगा। जो चीजें मैंने बताई इनका ध्यान रखिए। इसके साथ ही आप आसन जो आज हमने किए, ये आसन कोरोना से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। प्राणायाम भी जो आज हमने कराए वही करें। इसके अलावा YouTube से देख करके हम कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, योग शुरू कर देते हैं YouTube से। जो खासकर बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि YouTube से देख करके जब आप योग शुरू कर देते हैं, कई बार होता है कि आपने 2 दिन योग किया और उसके बाद आपके लंबर सेक्शन में दर्द हो रहा है, कहीं आपके सर्वाइकल पेन हो रहा है, कहीं पे
उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो वो पेन का कारण क्या है कि आप योग को ठीक विधि से नहीं करते हैं। योग का चाहे कोई भी अंग हो, आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, तो इसलिए शुरुआत में आप योग को किसी गुरु के अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखें। इसके लिए आप हमारी संस्था से भी जुड़ सकते हैं। हम आपको यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड आपका योगा पैकेज तैयार करते हैं और करवाते हैं। ये सेशन के बाद में कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर कैंसी को, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी और हमें रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन या योग निद्रा कराएंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर मैं ऑडिबल हूँ तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है Yes. कि आप अपने मैट पर लेट जाएं। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने मैट पर लेट जाएं। अब हम रिलैक्सेशन करेंगे सर। अभी आपने बहुत उछल लिया, कूद लिया, आसन कर लिए। Now the time of relaxation. Relaxation is very important after योग, प्राणायाम and all. तो रिलैक्सेशन करना बिल्कुल ना भूलिए जब आप योग करें। चलिए अब आप बिल्कुल लेट जाए। लेटना कैसे मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर आप जो कुछ करेंगे वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे करेंगे। आप पूरा ऐसे लेट जाए और पैरों में गैप रखें 1 से 1.5 फीट का, और हाथों को बिल्कुल लूज मैट पर छोड़े ऐसे। palm should be facing the floor or ceiling. हेड को आप, सर को आप जहां कंफर्टेबल फील करते हैं वहां रखें और धीरे से आंखों को बंद कर ले और लेटे रहें जब तक गुरुजी आते हैं, जब तक हम रिलैक्सेशन करते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाइए। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग थिंग टू डू इन लाइफ। अगर आप अच्छे से सुन के करेंगे, विद इंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यू विल बी फील गुड आफ्टर द सेशन। ओके, नाउ क्लोज योर आईज। अब मेरा फोन आप चाहे तो अपने कान के पास रख लीजिए। आई इंस्ट्रक्ट। अब जो करना है आपने मेंटली करना है। यू डोंट नीड टू मूव योर बॉडी। ओके, यू नीड टू जस्ट रिलैक्स। ओके, नाउ बॉडी को बिल्कुल लूज मैट पर छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़े, जैसे आप अपने बेड पर जाते हैं रात को थकने के बाद, ओहो बेड मिल गया ऐसा करके। तो वैसे ही आप बिल्कुल आराम से लेटे बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें। अब जितनी भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वो आपने मन से करनी है, आपके ब्रेन से करनी है। आपने कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है? आई रिपीट, आपने मेंटली करना है। यू डोंट नीड टू मूव योर हैंड्स, लेग्स, एनीथिंग। अगर इंस्ट्रक्शन समझ आए ठीक, अगर बाई चांस प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा रिलैक्स होकर इनहेल एक्सहेल करते रहे। ओके ओके, आई स्टार्ट द सेशन नाउ। आप ब्रीद इन एंड आउट करेंगे। ब्रीद इन करने के लिए आप पूरा इनहेल करें। इनहेल करके पूरा एब्डोमेन को ऊपर उठाएं, पूरा भरे, चेस्ट और एब्डोमेन पूरा फुला दे। यस, विद द एक्सहेलेशन रिलैक्स योर एब्डोमेन एंड चेस्ट। नाउ अगेन ब्रीद इन, पूरा चेस्ट और एब्डोमेन, पूरा एब्डोमेन भरे। विद द एक्सहेलेशन रिलैक्स योर एब्डोमेन एंड चेस्ट। Believe me, it is very relaxing. तो आप अपने अच्छे से करें, एब्डोमेन अच्छे से फुलाएं। Inhale, air in, abdomen up, chest up. With the exhalation, relax your chest and abdomen. Inhale, chest up, abdomen up. With the exhalation, relax your abdomen, chest and shoulder. Now inhale, abdomen and chest को पूरा उठाए, and with the exhalation relax your body. Now I always suggest people कि लाइफ में छोटा या बड़ा गोल रखें। तो मैं चाहूंगी आपने जो भी गोल बना रखा है या अभी बना ले, कोई भी छोटा बड़ा whatever, उसे आप बनाएं और उसे मन में 3 बार उसका रिपीटेशन करें। Your संकल्प you have to repeat 3 times. I am giving you 1 minute. With the inhalation and exhalation, आप अपना गोल डिसाइड करें। पहले से है तो उसको रिपीट करें 3 times. ब्रीद इन एंड आउट करते रहें।
ओके, फिर से एक बार एब्डोमेन ब्रीथ करेंगे. इनहेल, raise your stomach up and shoulders and chest. With the exhalation, relax your body. Just relax. With the inhalation, abdomen full of air, lungs up, shoulder up. With the exhalation, relax your shoulder, chest and abdomen. Very nice. बॉडी को और ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद ही रखें, शांत रहें. अब आप जो करेंगे मन से करेंगे. ओके, तो अपना अटेंशन जो है मन से, दिमाग से अपने राइट लेग के थंब को देखें. नाउ look at your right leg thumb with your mental power, no physical movement. अब अपने थंब को आप बिल्कुल लूज और रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला छोड़ें. Now relax your fingers, one finger, second finger, third finger, fourth finger and five finger. Relax your fingers. Now अपने एंगल जॉइंट को, एंकल जॉइंट, उसको बिल्कुल लूज और हल्का मैट पर छोड़ दें, रिलैक्स करें. अपने काफ मसल्स को भी बिल्कुल लूज, दाम रिलैक्स करके मैट पर ढीला छोड़ें, दाम रिलैक्स करें. अपने नी जॉइंट्स को भी बिल्कुल लूज और रिलैक्स मैट पर छोड़ दें. Now thigh muscles को feel करें. Mentally feel your thigh muscles and release your thigh muscles and relax your muscles. Very nice. हल्का छोड़ें बिल्कुल loose mat पर. Now hip joints and hip muscles को भी बिल्कुल loose हल्का mat पर छोड़ दें. Now अपना attention right leg की बजाय अब left leg के thumb पर ले जाएं. Left leg thumb मेंटली उसको देखें और मन से उसको बिल्कुल रिलैक्स करें. चारों फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, उसको बिल्कुल लूज हल्का मैट पर छोड़ दें. अपने एंकल जॉइंट्स को बिल्कुल रिलीज करके मैट पे छोड़ें. काफ मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ दें. नी जॉइंट्स को बिल्कुल लूज और रिलैक्स करके मैट पर छोड़ें. Thigh muscles को बिल्कुल loose relax कर दें. Now mentally see your spine and back muscles, your complete back, full back. And now feel your floor, your mat. And slowly relax your spine and back muscles. Yes. Now bring your attention to your navel point. Bring your attention to the navel point. और navel point को भी बिल्कुल रिलैक्स करें. सारी मसल्स जितनी navel point के आसपास है, abdomen की मसल्स, उनको रिलैक्स करें. चेस्ट मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स करें. पोलर बोन्स, क्लाविकल बोन्स को भी बिल्कुल रिलैक्स करके मैट पर छोड़ दें. राइट हैंड थंब को देखें. नाउ लुक एट योर राइट हैंड थंब. थंब को बिल्कुल ढीला रिलैक्स करके मैट पर छोड़ें. 4 fingers, first finger, second finger, third finger and fourth finger, इसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर दें. Wrist joint, lower arm, elbow joint, upper arm and shoulder joint, इनको भी बिल्कुल रिलैक्स हल्का मैट पर छोड़ दें. हाँ, लेकिन आपको बोलना था. I'm sorry about the disturbance. I'm sorry about the disturbance. Now left हैंड को देखें. लेफ्ट हैंड के थंब को बिल्कुल रिलैक्स कर दें. चारों फिंगर्स को, वन फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर, उनको भी बिल्कुल रिलैक्स कर दें. रिस्ट जॉइंट, लोअर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म एंड शोल्डर जॉइंट, इनको भी बिल्कुल ढीला हल्का मैट पर छोड़ें. अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दे. अपनी नेक को अब रिलैक्स करें. बैक ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड मसल्स को भी बिल्कुल ढीला मैट पर छोड़े. नाउ फॉरहेड मसल्स, उनको देखें. इन्वेंटरी उसको रिलैक्स करें. आईज, नोज, चीक्स, चिन, लिप्स, ईयर, इन मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स मैट पर छोड़ दें. एकदम लूज मैट पर छोड़े. Yes. Now
हेड टू टो आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल मैट पर रिलैक्स और लूज पड़ी है। एंड ब्रीद इन एंड आउट करें हल्का मध्यम गति से। See this योग निद्रा works in your subconscious mind. Now breathe in and out. Slowly breathe in and out करें। Inhale and exhale करते रहें। Yes. आपका जो नेचर डेवलप होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। Whatever you do, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो आप कॉन्शियसली करते हैं, बट जो आपका बिहेवियर है, ड्रीम्स है, दे आर ऑल डिपेंड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो द योग निद्रा आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। सो इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ विल क्विकली विजुअलाइज सम थिंग्स। आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है, हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ आंखें बंद करते करते आप विजुअलाइज करें स्नो कैप्ड माउंटेन, a river, a hut in a jungle, a blue sea, wide blue sea, a black rose, a girl with smile, a small girl with a smile, a beautiful garden full of flowers. Now imagine a stream from the mountain, a cold stream coming down from the mountain. And now you are in that water. Feel that cold water. And now look, a sun rising. Try to visualize a sun rising. A rainy day. A bright sky. Okay, now bring your attention to the eyebrows. And now आप अपने आप को कुछ affirmations करेंगे। Affirmation मतलब कुछ positive बोलेंगे। Negativity is all around, so now tell yourself some positive things. So अपने आप को बोले, मैं I am a happy person, I am pure, I am content, and I am full of powers. ईश्वर ने आपको अथाह सामर्थ्य दिया है, अथाह शक्ति दी है, अच्छा शरीर और दिमाग दिया है, तो आप में सब कुछ अचीव करने का सामर्थ्य है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का सामर्थ्य है। गीता के चैप्टर 2:6 में मेंशन किया गया है, जैसे सीजन आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप अपना कार्य करते रहते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन्स वैसे ही हैं, दे विल कम एंड गो बट दे विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। आपको बस अपना कार्य करना, अपना कर्म करना नहीं छोड़ना है, और लग के पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे जोश के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना कार्य करें। नाउ अगेन टेल योरसेल्फ, आई एम हेल्दी, फिट, हैप्पी, content, and full of energy and power. Now bring your attention to your right leg thumb. Activate your toes, ankle, calf muscles, knee joint, thigh muscles. Activate your left leg, toes, ankle, calf muscles, knee joint, thigh muscles. Activate your spine, activate your stomach and chest. Activate your right hand, activate your left hand, activate your neck, activate your back of the head, top of the head, activate your forehead, eyes, nose, cheeks, chin, ear, lips. अब आप राइट साइड करवट लेकर लेटे, आपको अपनी राइट साइड करवट लेनी है लेटे लेटे ही, और आंखें बंद रखनी है, और लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से लेफ्ट हैंड रखें और उठकर बैठ जाएं। बैठने के बाद हम 3 ओम चैंट करेंगे और आईज खोलेंगे। अभी आईज बंद रखें। चलिए इनहेल करें।
inhalation. Inhale. हाथ जोड़ें और एक प्रेयर करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक में सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस इच्छा के साथ, इस आशा के साथ हाथों को तेजी से रब करें, आइस पर लगाएं, फिर इसको रब करके हाथों को खोल लें। Hope you liked it. Now Surya Prakash will take over and will end the session. ओके, थैंक यू डॉक्टर कैंसी। आप सभी को पुनः नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत से योग की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया आज इसे मान रही है। चलिए, अब मैं कोविड के सॉल्यूशन की बात करूं तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आज ये जो महासंकट पूरे देश पर है, इससे बचने के लिए योग की दृष्टि से हम 4 स्तर पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल, शारीरिक स्तर पर। इसके लिए हमें क्या करना है? अच्छा भोजन करना है, अच्छी डाइट रखनी है और आसनों का अभ्यास हर रोज करना है। दूसरा, मानसिक स्तर पर, माइंड के लेवल पर, मन को शांत रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें प्राणायाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो आधे से 1 घंटे तक आप प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अगला, भावना के स्तर पर। तीसरा स्तर है भावना का स्तर, हार्ट के लेवल पर। आप अपनी भावनाओं को कैसे शुद्ध रखें, तो इसके लिए आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें हर रोज। 5 से लेकर के 15 मिनट तक आप मेडिटेशन के लिए समय जरूर निकालें। इसके लिए आप मन को अच्छा रखने के लिए आप अपनी हॉबी भी कर सकते हैं। जैसे आपको डांस करना है तो डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुनना है, अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुन सकते हैं। और अगला स्तर है आत्मा का स्तर, ज्ञानामृतम भोजनम। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान शुद्ध होता है, तो ईश्वर को जाने। इसीलिए हमारे बीच में मौजूद हैं परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी चितेश्वरानंद जी महाराज, जो हमें आगे उद्बोधन करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं उनसे कि वो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी योग गुरुओं का। We are honored to have amongst us His Holiness परम पूज्य स्वामी। दर्शकों को सादर वंदन। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, विश्व योग दिवस पर हम सब ये सब देख कर रहे हैं। ये जनक है योग का भारतवर्ष, और आज नहीं, आदिकाल से ही योगी इस देश में रहे हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये योग अष्टांग योग है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। और पूर्ण योग तभी होता है जब 8 अंग पूरे हों। लेकिन वर्तमान में रोग आया हमारे देश में, संकट आया हमारे देश में, उसके लिए भी इसका उपचार होता है, अब योग होता है। लेकिन आत्मा का कल्याण मुख्य बात है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये 3 साधन है, और इसमें मनुष्य होने का ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन को शुद्ध करने के लिए, साधन को सुरक्षित रखने के लिए यह जो योग है, ये बहुत 8वां हिस्सा है। बाकी 7 और भी हिस्से हैं। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उससे पहले यम और नियम। यम नियम का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करें। किसी को दुखाए नहीं, किसी को ठोके नहीं, किसी को सताए नहीं, किसी को लूटे नहीं, ठगाए नहीं, मन को शुद्ध रखें। ये मन शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होगा। मन, विचार, सब विचार ठीक होंगे तो कर्म ठीक होंगे, उपासना ठीक होगी तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, घटना होंगी। अभी एक शुद्ध ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न। शरीर तो यही मिला है, मैंने नहीं बना लिया, हमने आपने शरीर नहीं बना लिया। माँ बाप भी शरीर नहीं बनाते, माँ बाप का भी तो किसी ने बनाया।
और जिसने बनाया उसी को नाम ईश्वर कहते हैं, जो हम सबके एक एक क्षण के काम को देख रहा है, सबके अंतःकरण को जान रहा है, कहाँ हम में त्रुटि है, कहाँ गलती है, कहाँ मैंने पाप भरा है, कहाँ मन में दोष है, कहाँ उल्टाए हैं, क्या उल्टे चक्र हैं, इन सब को जो जानने वाला है कर्मानुसार, जैसे हमने कर्मा से अर्जित किया है उसके अनुसार भगवान हमको ये शरीर देता है और शरीर से उपयोग करते हैं। ये शरीर मेरा साधन है, मेरे से भिन्न है, ये जड़ है, प्रकृति से बना है, प्रकृति जड़ होती है जिसमें कोई ज्ञान नहीं, इच्छा नहीं। ये शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर पूरा का पूरा इंद्रियां जड़ है, पर ये साधन है। जैसे आंख दिखाती है लेकिन देखती नहीं है, कान सुनाता है उसको कुछ नहीं सुनता है, जैसे हमने चश्मा स्पेक्स लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं, चश्मा देखता नहीं है, दिखाने वाला यंत्र है। ऐसी आंख दिखाने वाली दृष्टा में आत्मा हूं, बोलने वाला मैं आत्मा हूं, ये वाणी बोलने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है, सिर्फ यंत्र है ये। टॉर्च से हम देखते हैं, उजाला किया दिख रहा है हमको, लेकिन टॉर्च सिर्फ यंत्र है, वो देखता कुछ नहीं है। ऐसी ये सब इंद्रियां हमारे हैं, ऐसी तरह की। तो इनका उपयोग करते हुए स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना और आज प्रकृति को जानना। प्रकृति साधन है, प्रकृति रूप ये शरीर साधन है और ये शरीर मिला और यहीं छूटेगा। ये सब लोग मुझे यहीं मिले। मैं जब संसार में आया तो किसी को नहीं जानता था, माँ को भी नहीं पहचानता था, माँ भी मुझे नहीं जानती होती। यही हमारा परिचय होता है, माँ से, बाप से, भाई बहन से, बिरादरी से, गोत्र से, वंश से, कुल से। ये सब शरीर के साथ जुड़े। भगवान ने जिस भी देश में, जिस भी प्रांत में, जिस भी गांव में, जिस भी घर में मेरे को जन्म मिला है, अब मैं उसी बिरादरी का हूँ, उसी गोत्र का हूँ, उसी वंश का हूँ, उसी कुल का हूँ, उसी योनि का हूँ, उसी लिंग का हूँ। तत्वतः मैं आत्मा हूँ। ये लिंग शरीर की होती है, ये सब चीजें शरीर के साथ है और शरीर यहीं मिला और यहीं छूट जाने वाला, हम फिर आगे जाते। तो इस तथ्य को जानते हुए शरीर साधन है, एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, इसको सुरक्षित रखना है, इसको शुद्ध आहार देना है, सात्विक आहार देना है, पौष्टिक आहार देना है, कुछ गंदी चीज इसमें नहीं डालनी। हमने क्या क्या आजकल मनुष्य खाना शुरू कर दिया, मनुष्य ने खाना शुरू कर दिया, यह अनुचित है। शुद्ध आहार लें, शुद्ध विचार रखें, शुद्ध कर्म करें, बढ़ेंगे हम। और जो उल्टा पुल्टा करेंगे तो उल्टा पुल्टा खाएंगे, अति श्रम करेंगे, टेंशन में जाएंगे, विचार उल्टी रखेंगे तो बुरे सोच भरेंगे। तो बुरे सोचों से बचना, अच्छे कर्म करना है, अच्छे विचार रखना है, खान पीन को ठीक रखना है, ये सब साधन को हमने अपनाना है। मैं आत्मा शरीर से भिन्न शुद्ध हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, कभी पैदा नहीं होता हूँ। आत्मा सदा से है, शरीर छोड़ते हैं फिर बदल के जाते हैं, फिर बदल के जाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही भगवान कर्मानुसार हमको जन्म देता है। ईश्वर हमको कर्म के अनुसार जन्म देता है। तो जैसे अपने कर्मों को हमने ठीक करना है, किसी की भी हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, बहुत बहुत आभार अनावश्यक चीजों को नहीं रखना है। We are very grateful. पवित्रता का, शुचिता का ध्यान रखना है, तन की, भोजन की, रहने की, स्थान की और मन की, अंदर की शुद्धता, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता, दोनों शुद्धता को रखना है। अंतर से भी हम सुंदर शुद्ध हों, शरीर से भी शुद्ध हों, बाहर से भी शुद्ध हों। We are very grateful, Param Pujya Swamiji, who has given his kind consent to join us on International Yoga Day celebration. We welcome you, sir, from Manav Rachna family. और उस परमात्मा समय का थोड़ा सा अभाव रखते हुए छूटना। मैं आग्रह करना चाहूंगी अपने पार्टिसिपेंट से कि वो एक एक करके अपने सवाल स्वामी जी से पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरी बात सुनी और जितना प्रयास करेंगे, ध्यान करना है, रोज करना है, रोज ध्यान करने की बात है। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हमारी मन लगने लगेगा और ईश्वर के साथ हम जो उसके गुण पवित्र के साथ रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। हमारे विचार भी, कर्म भी, सोच भी, और हमारा मंगल होगा। भगवान कल्याण करे। खूब धन्यवाद सबका। Swamiji, we are also very grateful to you for this kind consent. Swamiji is one of the prominent spiritual leaders among Indian saints. सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन है आई थिंक अभी। मैं आग्रह करना चाहूंगी अपने पार्टिसिपेंट से कि वो एक एक करके अपने सवाल स्वामी जी के सम्मुख रख सकते हैं। यस,
बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी इस वर्कशॉप में हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिल गए हैं, बट कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे कि हमारी एक सुनीता जोशी मैम का सवाल है। वो ये कहना चाह रही हैं कि जो महिलाएं वर्किंग हैं, इस कोविड के टाइम पे घर का भी काम है, बच्चों का भी है, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट भी हैं, तो कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं? कौन सी ऐसे आसन्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं? जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यस, कैंसी प्लीज। मैं ये क्वेश्चन लेती हूँ। ओके, स्वामी जी ले रहे हैं? नहीं, आप बताइए, आप बताएं। हाँ, ठीक है। मैं इसका आंसर करना चाहूंगी। आई नो फीमेल्स को बहुत काम रहता है, सुबह भी घर पे भी। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें आदत डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो कभी कभी तो आप थोड़ा फ्री होते हैं, यू चेक योर मोबाइल्स। तो कोशिश कीजिए बैठे बैठे ही आप अपने चेयर पे ही प्राणायाम शुरू कर दीजिए। ट्राई भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ये कर लीजिए। और जहां तक आसन की बात है, फॉर फीमेल्स मैं बताना चाहूंगी उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो आप उज्जाई प्राणायाम जरूर करें, अगर आप लिख सकते हैं तो प्लीज लिख लीजिए। उज्जाई प्राणायाम करें, आप कंधार आसन करें, दैट वाज दिस आसन। आप पैरों को उठाकर ये करें, ओके। सर्वांग आसन करें, हल आसन करें और भुजंग आसन करें। और एक सूर्य नमस्कार अर्ली मॉर्निंग उठ के कम से कम 10-15 मिनट आप कर लेंगे, यू आर थ्रू। एंड ट्राई टू व्हाट यू हैव टू डू, अपने काम के थ्रू, काम के साथ साथ अपने आसन और प्राणायाम करें। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं स्ट्रेचिंग बता रही थी, ये आप कर सकते हैं पैरों की। ये क्या होता है, इससे आपकी जितनी नर्व्स है ना स्पाइन के पीछे, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, और आप कहीं ना कहीं रोगों से बचे रहते हैं। तो ट्राई टू प्रैक्टिस व्हेन यू आर एट द ऑफिस। यू कैन डू सम आसन थ्रू। अगर ज्यादा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, तो आई राइट सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज यहाँ और भी क्वेश्चन होंगे। होपफुली आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। यस मैम, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हुए हैं इस वर्कशॉप से भी और आपके उत्तर से भी। जो दूसरा सवाल मैम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि जैसे बच्चे आजकल के बच्चों को छोटी एज से ही चश्मा लग जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आजकल जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चे पूरा टाइम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इसी में बिजी हैं, क्योंकि वो अपनी क्लासेस भी मिस नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, I know there are lots of online things is going on. We also doing it online. Everybody is doing online. हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो एक तो 2-3 प्राणायाम है जो आप बच्चों से आप कराइए। ये भ्रामरी जो प्राणायाम है, ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपकी आईज, ईयर्स, उनकी भी एक्सरसाइज करा सकता है। तो एटलीस्ट 5 to 10 टाइम आप अपने बच्चों से ये कराइए। और आईज की एक्सरसाइज है जो मैं बता दूं, बहुत छोटे में मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। आप अपने अंगूठे को ऐसा रखेंगे, ये जो अंगूठा है उसका टिप देखना है आपने, ठीक है। टिप को देखना है, और आपने अंगूठे को बाहर निकालना है ऐसे, फिर सेंटर लाना है, देन दूसरी साइड ले जाना है, और इसी को फिर अप एंड डाउन करना है, ठीक है। और फिर इसी को रोटेशन करना है। दीज आर फॉर द आईज एक्सरसाइज। और एक और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आईज की पावर के लिए बहुत अच्छी है। आपने क्या करना है, अपने बच्चे को वॉल से 6 फीट दूर रखना है, सीधे बिठा के उसको बोलना है कि आईज को स्क्वीज करे और पूरा खोले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई वॉल एंड आई एम डूइंग ऐसे। फिर अच्छे से बंद करे, फिर खोले, फिर अच्छे से बंद करे, फिर खोले, फिर अच्छे से बंद करे। ऐसा वो 2 से 3 बार दिन में करे। और उसके साथ साथ एक पामिंग होती है, अपने हाथों पे ऐसे रब करे अच्छे से, और अपने बच्चे को बोले ऐसे लॉक करके अपने आईज को लॉक कर ले। जब भी मान लीजिए उसने ऑनलाइन सेशन खत्म किया, आस्क हिम और हर ऐसे रब करे और आराम से ऐसे करके बैठ जाए फॉर 2 मिनट्स। इससे रिलैक्सेशन हो जाएगा, पामिंग से आंखों की एक्सरसाइज हो जाएगी। और तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों को सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस जरूर कराएं, तो इससे स्लोली ग्रेजुअली उनको थोड़ी राहत मिलेगी। एंड देयर आर आई ड्रॉप्स, गुलाब जल है, शहद डाले आंखों में। और रात में जब बच्चा सोए, आई एम नॉट इट्स योर पर्सनल चॉइस। जब रात को बच्चा सोने जाए तो 2 चीजें आप उसकी नाक में डाल सकते हैं। एक तो देसी गाय का घी 1 ड्रॉप, और आलमंड ऑयल, इट शुड बी प्योर,
ठीक है, जैसे वैद्यनाथ का आता है, पतंजलि का आता है, फाइंड सम प्योर बादाम रोगन और एक ड्रॉप आइस में उसकी नाक में डाल दीजिए, इससे उसका ये पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आई विश आप इतना कराइए, उससे इंटरेस्ट आएगा तो फिर और कराइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कांसी जी आपका। एक शिल्पा मैम है हमारे बीच में, पार्टिसिपेंट शिल्पा जी, वो अपना सवाल पूछना चाहती हैं। शिल्पा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं या हम थक जाते हैं या कभी हम ऐसे अकेले बैठे होते हैं रूम में, तो हमें कई सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वी गेट डिप्रेसिंग थॉट्स। हम मतलब जैसे सोफे पे बैठ गए तो हमें एकदम से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव मेमोरीज आती हैं जो आनी शुरू हो जाती है और फिर हमारे धीरे धीरे मतलब माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स जमा होने जाना शुरू हो जाते हैं और मूड धीरे धीरे अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करें? क्योंकि हर टाइम आप बिजी नहीं रह सकते। कहा जाता है कि बिजी रखो तो अपने आप को दूर रखोगे थॉट से, बट हर टाइम आपकी बॉडी बिजी नहीं हो सकती, तो उसमें हम क्या करें? Very nice question. And the thing is, almost everybody is facing the same problem. आप काम करके थक जाते हैं, फिर आप काम कैसे करें, कैसे आप अपने और कामों को करें। तो मैं अपने लिए अपनाती हूँ, आई सजेस्ट यू कि आप ऐसा करें, एटलीस्ट थोड़ा टाइम। सी, यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन योर मोबाइल, राइट, ऑन फेसबुक, राइट। सी, इट कुड भी थोड़ा सा लगेगा कि मैं इतना पर्सन क्यों हो रही हूँ, बट आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे थोड़ा टाइम निकालते हैं, उसको थोड़ा हटाइए अपनी लाइफ से। ओके, दीज वर्चुअल थिंग्स आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, तो थोड़ा स्पेस आप टाइम वहां से निकालिए। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योगा, आई एम नॉट सेइंग डू इट फॉर 1 hour, आप एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालिए। लेट मी टेल यू, आपने सिर्फ सूर्य नमस्कार लर्न करना है, 5 सेट सूर्य नमस्कार के आपने कर लिए। अभी मैं और भी आगे बताऊंगी। उसके बाद यू प्रैक्टिस अनुलोम विलोम। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना, आप कुछ मत करिए, सिट डाउन कंफर्टेबली and start inhaling from left and exhaling from right. Keep doing it for कम से कम 20-30 times. Slowly you will see you having something good is happening in you. And see, negativity को भगाना it's not easy, but I'll tell you कि आपको पता है वो आपको harm करेगी, correct? You know आप उसमें जाएंगे तो आपको mental harassment हो सकता है, anxiety हो सकती है, and slowly it leads to depression too. तो हमें अपने आप को उससे भगाने के लिए पॉजिटिव थॉट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप थक गए हैं, ऑफिस में किसी से लड़ाई हो गई, तो आपको लगेगा वो कितना खराब है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, राइट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस कि उसने खराब किया, मेरे साथ खराब हुआ, डोंट थिंक। आप ये सोचिए उसने जो किया वो उसका कर्म था, नाउ माय टर्न, माय कर्मा इज टू रिलैक्स माय सेल्फ। तो मुझे अपने लिए सोचना है, नहीं मैं ठीक हूँ, उसका कर्म मैंने उसको छोड़ा, अब मैंने सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, अच्छा रखना है। Keep repeating that thought that I am happy, I am positive, I am good and healthy, and keep practicing. And let me tell you that Gita book, जिसको हम बहुत पूछते हैं अपने भारत में, that is very beneficial. अगर आपके पास कभी भी समय हो ना, तो आप YouTube खोलिए, आप मोबाइल को यूज कीजिए, YouTube खोलिए, आप गीता के लेक्चर सुनिए, it will really help you. Do सूर्य नमस्कार, do अनुलोम विलोम, and then read some Gita or some book, anything, or call somebody जिससे आप ट्रस्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच कांसी जी एंड सुनीता जी, और भी जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने सवाल पूछे हमारे योग गुरुओं से। we all loved this yoga workshop. It was very peaceful and we all felt warm and welcomed. We found everything like very helpful, and we learned many facts we did not know. The pace suited us perfectly in our practice. Each step led into the next stage very carefully and clearly. It was like so helpful. Thank you so much. Now I would like to invite Dr. Gurjeet Kaur Chawla, Associate Dean, Department of Students Welfare, to propose vote of thanks. Thank you, Dr. Pooja. On behalf of Department of Students Welfare and entire Manav Rachna family, I extend my heartfelt thanks to all our eminent speakers for the day. And it was really a wonderful session, and I hope that all of us have got benefited out of it. Thanks to Yogacharya Param Pujya Swami Chiteshwanand Ji Maharaj Ji and Yogacharya Surya Prakash Ji, Yogini Kansi and Yog Master Nitin for sparing their valuable time.
एक बार फिर समस्त मानव रचना परिवार की तरफ से मेरा शत नमन और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद. I extend my thanks to each and every faculty member, the student, the staff member from the Manav Rachna family and from the other organizations who have participated in this event, and they have contributed for making this event a grand success. My thanks also goes to all the IT department and the PR team for helping us in organizing this event. And I would be failing in my duties if I do not extend or if I do not mention the extension of my DSW, all the clan members, and a special mention goes to Dr. Pooja Khurana and my very loving colleague, my Yashika Hasija, for for supporting this event, for their unstinted support and cooperation for starting of this event, be it organizing the speakers, designing the creatives and creating the email IDs, sending the emails. Everything has at the back end has been done by Yashika. Yashika, thank you so much, and thank you, Dr. Pooja. And last but not the least, my special thanks goes to all my seniors and the management for all time supporting and cooperating with us. And so with today's take-home message is that yoga is about awakening. Yoga is about a life that brings more beauty and more love in the world. So make your life beautiful on this on the occasion of International Yoga Day. आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your words of wisdom. Thank you so much, ma'am. यूं तो योग के सभी प्रकार के आसन शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन आसन ऐसे हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो शरीर के लिए अत्यंत जरूरी हैं. इनका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए. यही हमने आज की वर्कशॉप में सीखा. इन अभ्यासों से हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं. थैंक यू सो मच हमारे पार्टिसिपेंट्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, गुरजीत मैम का, सोनी सर का, हमारे एमिनेंट स्पीकर्स का. थैंक यू सो मच. मेनी थैंक्स. स्वस्थ रहें, खुश रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हमारे योग संस्थान की तरफ से भी हम हसीजा का और बाकी सभी का, बहुत पार्टिसिपेंट्स का, सबका धन्यवाद करते हैं. मानव रचना यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करते हैं. थैंक्स अ लॉट. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कांसी जी से कि वो शांति पाठ से इस वर्कशॉप का उसको खत्म करें. वर्कशॉप को शांति पाठ का उच्चारण करवाएं हमें. योग मास्टर नितिन जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वो शांति पाठ का उच्चारण करवाएं हमें. देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, विश्व देवा शांति, कापा शांति, श्यामा शांति. ओम शांति शांति शांति. सभी को प्रणाम. प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू. थैंक यू सो मच.